All right, news coming in. A case has been registered against MNS Chief Raj Thackeray in Aurangabad. This case has been registered as against Raj Thackeray as well as the organizers of the meeting at City Chowk Police Station. On May 1, Raj Thackeray had organized a meeting in Aurangabad. All right, for more on this, I'm joined by Shivani on the broadcast. Shivani, thank you for joining us. What is the latest that you can share with us as far as this case against Raj Thackeray is concerned? See, on the 1st May, Raj Thackeray was supposed to carry this rally, which he carried, and the state government had given him all the permissions with 16 conditions, and out of those 16 conditions, 12 have been violated. Hence, this case has been registered not only against Raj Thackeray but also including 26 other. Those were the organizers of this entire rally in Aurangabad, and also the charges those have been imposed on all of them are, some of them are bailable. Well, a few of them are non-bailable as well. So now Raj Thackeray will have to get some relief from the local police station. But as of now, what we are learning is that the CCTV footages of the entire ground where the rally took place was scanned by the cops. In fact, the commissioner himself was keeping a tab on that. And Raj Thackeray's speech was already also thoroughly checked by the cops over here. And then a final report of those CCTV footages and the violation of those guidelines and the conditions was submitted to Home Minister of State. And also we saw that a few minutes back Home Minister had a meeting with CM Uddhav Thackeray, and later comes a decision of a case which has been now registered against Raj Thackeray and the organizers of that particular rally. But yes, of course, 27 people, including Raj Thackeray, are under now the scanner of Aurangabad. Of course, there are going to be some trouble here, but definitely, as also earlier we mentioned, that MNS has clearly said that they are all set and all prepared with their own legal team to fight such battle against the state government. Right. Now the interesting part would be to see how Raj Thackeray All right, tackles this Shivani, issue. my apologies. I'll have to interrupt you. I'm joined by Shalini Thackeray of the MNS on the broadcast. Ms. Thackeray, thank you for making time and speaking to us. Your first reaction to this case that has been registered against Mr. Raj Thackeray. आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राज ठाकरे के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है औरंगाबाद में, जो उनकी 1 मई को जो उनकी रैली थी, ऐसा कहना है पुलिस का कि उनको 16 शर्तें जो थी उनको दी गई थी, जिसमें से 12 का उल्लंघन उन्होंने किया है। देखिए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि केसेस लगे हैं। पहले भी राज साहब के ऊपर और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस लगे गए हैं। जब उन्होंने शर्तें रखी थी तभी हम समझ गए थे कि वो हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज की भी हैरत नहीं है कि सिर्फ हमारे ऊपर ही ये कार्रवाई होती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्ष के ऊपर होती है, दूसरे पक्ष कुछ भी बोल के जाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये आज सबके सामने बात आ चुकी है। एनीवे, जैसे राज साहब के ऑफिस ने बोला है कि हमारी लीगल टीम है जो पहले भी फाइट करती आ रही है, अभी भी फाइट करेगी, लेकिन कहीं पे मुझे लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं, हमारा मुद्दा है वो कायदे का पालन करने का मुद्दा है, और हमारे ऊपर ही केसेस लगाए जा रहे हैं, और जो लोग कायदे का उल्लंघन करते हैं उनको कोई भी कुछ नहीं करता। जी, शालिनी जी, मैं एक और बात आपसे जानना चाह रही थी कि महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में, पुलिस जो है वो अलर्ट पे है, क्योंकि राज ठाकरे जी का जो अल्टीमेटम था लाउड स्पीकर्स में वो खत्म होने जा रहा है। तो क्या आप अश्योर कर सकते हैं कि एमएनएस की तरफ से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं होगा? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि अभी तक आपकी पार्टी ने सारे रूल्स फॉलो किए हैं, सारी शर्तों को फॉलो किया है, लेकिन क्योंकि पुलिस अलर्ट पे है, नजर एक तेज नजर बनाई हुई है पुलिस ने, तो क्या एमएनएस की आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? आपने साहब की स्पीच सुनी होगी। उन्होंने जो बोला है उसी तरह से उनके आदेश का पालन होगा। उनके पूरे स्पीच में उन्होंने कहीं पे भी कुछ भी कायदा या सुव्यवस्था का उल्लंघन करने को नहीं बोला। कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेगा। उन्होंने बोला है कि अगर यहाँ पे अजान बहुत बड़े डेसिबल पे सुनाई देती है तो उसके सामने आप हनुमान चालीसा उतने ही या बड़े डेसिबल पे चलाइए। उतना करने को बोला है, उतना ही किया जाएगा।
जी, शालिनी जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है बस, और आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा, और ये बहुत ही वाजिब आर्गुमेंट रहा है कई लोगों का, कि नॉइस पोल्यूशन काफ़ी हो जाता है और ज़रूरत नहीं है हर किसी को लाउड स्पीकर पे किसी भी धर्म के बारे में सुनने की। लेकिन मुंबई एक ऐसा शहर है, और महाराष्ट्र है, देश भर में काफ़ी त्यौहार मनाए जाते हैं, और हर त्यौहार के वक्त कई बार ऐसा होता है कि जो लोग हैं उनको लाउड स्पीकर से दिक्कत होती है। तो क्या आप इंश्योर करेंगे कि चाहे वो किसी भी धर्म का कोई भी त्यौहार हो, मान लीजिए आने वाले वक्त में गणेश चतुर्थी होगा, उस वक्त तो मुंबई में एक अलग तरीके की धूम होती है, कोई भी त्योहार हो, तो क्या उस वक्त भी आपके यही कैंपेन रहेगी लाउड स्पीकर के खिलाफ? आप यहाँ पे आप जो समझ रही हैं वो ही मुझे लगता है कि बहुत क्लियर करने की जरूरत है। राज साहब ने 3 तारीख तक बोला कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि त्योहार चल रहा था। उस त्योहार में कोई भी विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने इस चीज की पूरी तरह से समझदारी दिखाई और ऐसा ही आदेश दिया। हम उस त्योहार के टाइम की बात नहीं कर रहे, हम उस चीज की बात कर रहे हैं कि रोज 5 टाइम जो अजान चलती है, लाउड स्पीकर पे चलती है, बहुत जोर से चलती है, और वो हर किसी को सुननी पड़ती है। हम उस मुद्दे की बात कर रहे हैं, और ये मुद्दा हमारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हुए हैं, उस पे सबको लागू करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी आपका हमारे चैनल को वक्त देने के लिए, और काफ़ी मुद्दों पे क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि क्या पार्टी की सोच है, और अश्योरेंस देने के लिए, जैसे कि राज ठाकरे ने भी कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर के प्रति कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस में कई जगह पे अलर्ट पे है, क्योंकि आज एक अल्टीमेटम जो दिया था राज ठाकरे जी ने वो खत्म हो रहा है लाउड स्पीकर के खिलाफ। शालिनी इज स्टिल विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। शिवानी इज स्टिल विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। All right, I'm afraid we've lost that connection with our correspondent, but the big news that is coming in is that a case has been registered against MNS's Raj Thakre.